Hello students, today we are going to study the chapter 6 of class 6. This is major landforms of the earth. A landforms is a natural feature of the solid surface of the earth. Typical landforms include hills, mountains, plateaus, canyons, valleys, as well as shoreline features such as bays, peninsulas and seas. Here you can see different landforms in this figure, like mountains, plateaus, plains, rivers, tributaries, lakes, mountain ranges, hills, peninsula, etc. These landforms are a result of two processes, internal process and external process. Within the earth, a continuous movement is taking place is internal process, and on the earth, this continuous movement is taking place is external process. Internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places, and external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. Important terms. The wearing away of the earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं. अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है. These two processes are carried out by running water, ice and wind. ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं. Different landforms depending on elevation and slopes. विभिन्न स्थल रूप उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर हैं. माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, पर्वत, पठार और मैदान. सबसे पहले हम माउंटेन्स यानी पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे. A mountain is a large landform that rises above the surrounding land in a limited area, usually in the form of peak. पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है. पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है. ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है. Some mountains occur in long chain called ranges. बहुत से पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है. Some mountain peaks are permanently covered with snow and are called snow caps or glaciers. कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है. Hills are naturally raised areas of land that are lower than mountains. Hill. A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. पहाड़ी वो स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है. Mountains. The highest mountains on earth is Mount Everest in the Himalayas of Asia. Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. Mount Kiaya in the Pacific Ocean is an undersea mountain. It is higher than Mount Everest, being 10,205 meters high. प्रशांत महासागर में स्थित माउनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है. इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है. ये माउंटेन पीक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और देखिए पीछे की तरफ जो बर्फ़ से ढका हुआ माउंटेन पीक है. ग्लेशियर. A glacier is a persistent body of dense ice that is constantly moving under its own weight. Glacier ice is the largest reservoir of fresh water. Types of mountains. वैसे तो आपके सिलेबस में 3 तरह के माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स, मगर रेसिडुअल माउंटेन्स भी होते हैं. हम यहाँ पर 3 तरह के माउंटेन्स पढ़ेंगे, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. Fold mountains. The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the process of erosion. The Appalachians in North America and the Ural mountains in Russia have rounded features and low elevation, and they are very
old fold mountains. फोल्ड माउंटेन्स वलित पर्वत कुछ इस तरीके से बनते हैं जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं. द डाउन फोल्ड इज कॉल्ड सिंक्लाइन एंड द अप फोल्ड इज कॉल्ड एंटिक्लाइन. कोलाइडिंग प्लेट्स कंप्रेशन की वजह से होते हैं. ब्लॉक माउंटेन्स, भ्रंशोत पर्वत. जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हॉस्ट कहते हैं और नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है. द राइन वैली एंड द वॉस्गस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स. हियर यू कैन सी दिस इज हॉस्ट, ऊंचा उठा हुआ भाग है, एंड दिस इज ग्रेबेन जो नीचे दब गया है. वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं. अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं. वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी. माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स. यूजेस ऑफ माउंटेन्स, पर्वत वैसे तो बहुत लाभदायक होते हैं क्योंकि ये जल के संग्रहगार होते हैं. दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर. मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. नदी घाटियाँ और वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं. पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं. वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं. सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग बहुत ही उपयुक्त स्थान है. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. Plateaus. A plateau is a flat elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. A plateau is a flat elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. पठार उठी हुई सपाट भूमि होती हैं. ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है. किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके खाड़ ढले होते हैं. पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है. प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड. भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है. द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं. यूजेस ऑफ प्लेट्यूज, they are rich in mineral deposits. African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the Chota Nagpur plateau. There may be several waterfalls as the river falls from a great height. In India, the Hundru falls in the Chota Nagpur plateau and the river Suvarnarekha and the Jog falls in Karnataka are examples of such waterfalls. लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है और खेती के लिए बहुत अच्छी होती है. कई पठारों पर रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. प्लेन्स, अ प्लेन इज़ अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड. मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं. प्लेन्स इन मैनी एरियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज वेयर द सॉइल्स वर डिपॉजिटेड एज सेडिमेंट्स दे मे बी डीप एंड फर्टाइल एंड द फ्लैटनेस फैसिलिटीज. यहाँ आप देख सकते हैं ये मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं. यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है. Construction of transport network is easy in the plains. Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra river in India and the Yangtze river in China. Uses of plains. For human habitation, there is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. Fertile soils, the land is highly productive for cultivation. In India, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated regions of the country. Landforms and the people. स्थल रूप और लोग. Life is difficult in mountain areas.
स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स एंड फ्लड कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। दैट्स ऑल योर चैप्टर। थैंक यू।